Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम हर एक का स्वागत करते हैं। Greetings from the Heart of Christ Church, हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया से हम हर एक का स्वागत करते हैं। and we hope that you all are doing good. मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं। And we also thank you for joining us online. और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ हर एक को जो आज इस ऑनलाइन में हमारे संग मौजूद है। And we appreciate that you would share this link to your families and friends. और हम विश्वास करते हैं कि आप ये लिंक को अपने परिवारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आप दोस्तों के साथ ये शेयर करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। And today happens to be the day of appreciations to our pastor. और आज के दिन हम अपने पासवान को मनाते हैं। And we thank Pastor for all the wonderful service which he is doing. और जो भी सेवकाई वो कर रहे हैं उसके लिए हम उनकी धन्यवाद करते हैं। And let his efforts not go in vain. और हर एक कार्य जो वो करते हैं वो ऐसे ही व्यर्थ न जाएगा। And as a church we bless him in the name of our Lord and Savior Jesus कलीसिया Christ. होने के नाते हम उनको हम आशीष करते हैं यीशु के नाम से। So as we begin this worship, आज की सभा को जैसे हम शुरू करते हैं। let us turn to our Bibles from Jeremiah chapter 3 verse 15. यिर्मयाह का किताब हम खोलेंगे, उसका 3रा अध्याय Jeremiah chapter 3 verse 15. और 15 वचन। And I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Can you please turn to Jeremiah chapter 33 verse 3? यिर्मयाह का किताब उसका 33 अध्याय 3रा वचन हम वो भी पढ़ेंगे। Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। As this day we are celebrating Pastor's Appreciation Day, जैसे आज हम पासवान के दिन को मनाते हैं let us appreciate in everything he does for the church. और कलीसिया के लिए जो भी करते हैं उसके लिए हम उनके धन्यवाद करते हैं। Can you please open up your Bibles and turn to 1 Timothy पहला तिमुथियुस का किताब हम खोलेंगे, chapter 5 उसका 5वां अध्याय verse 18. 18 वचन। So chapter 5 verse 18. For the scripture says, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain, and the laborer is worthy of his wages. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। Hallelujah. हालेलुया। We praise the Lord for blessing us with a wonderful pastor. परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें एक अच्छा पासवान देकर हमें आशीष किया है। And we pray that every efforts which he puts in this church shall not go in vain. और जो कुछ भी कार्य वो हमारे कलीसिया के लिए करते हैं वो कभी व्यर्थ न जाएगा। And as a church, let us appreciate in everything he does और for जो कुछ us. भी वो करते हैं हमारे लिए एक कलीसिया होकर हम उनको धन्यवाद कहते हैं। Come on, church, let us look up to the Lord in prayer. आइए अपने आंखें बंद करके हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। Lord, we thank you for this time you have given us. परमेश्वर धन्यवाद कहना चाहते हैं सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। We thank you for all the wonderful blessings which you have showered upon us. और जो कुछ भी आशीष आपने हमारे जीवन में किया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। We give you all the glory and honor, Father. सारी स्तुति आदर हम केवल आपको देते हैं। Lord, we thank you for giving us this day as we celebrate this day of Pastor's Appreciation Day. जैसे आज के दिन हम पासवान के दिन को मनाते हैं प्रभु। As we reflect, Lord, let us thank the pastor for all the services which he has been rendering. और हर एक सभाओं के लिए जो वो हमें चलाते हैं उस सब के लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। Lord, you protect and give him the knowledge, understanding and wisdom, Father God. बुद्धि समझ से और भी उन्हें आशीष कीजिए प्रभु। Because he is the forefront for the church of Father पूरे God. कलीसिया की अगुवाई केवल वही आगे रह के करते हैं। Lord, we also pray for his good health and strength. अच्छे से स्वास्थ्य और सामर्थ्य देकर उन्हें आशीष कीजिए। We pray as a family and as a church to bless him in the name of our Jesus. एक कलीसिया होके एक परिवार होके हम उन्हें आशीष करते हैं यीशु के नाम से। And we thank you for blessing us with a wonderful pastor. और एक अच्छे पासवान आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद।
As your word says that, Lord Almighty God, that we are your shepherds. And प्रभु जैसे आपके वचन में कहा है कि हम सब आपके मेमने हैं प्रभु। so we are your sheep so that we may lead into your wilderness, oh Father God. और प्रभु आपने हमें एक मेमना बन के आप हमें चराएंगे, एक चरवाह होके, इसके लिए धन्यवाद। We pray for all those who are joining us right now, Lord. प्रभु जो कोई हमारे साथ इसमें आज मौजूद है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। And we pray for all those who are going to join us live right जो now. कोई आज हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में भाग्य बनने वाले हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते Lord, हैं। you take total control of this worship and word, oh Father पूरी God. आराधना वचन में आप हमें चलाइए। Lord, we also pray for the worship team who's going to lead us in worship. और आराधकों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमारी अगुवाई आज करेंगे। Let us praise you and worship you, Father God. प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए मदद कीजिए। And we pray that, Lord Almighty God, that you will speak to our pastor through your word, oh Father. प्रभु वचन द्वारा आप हमारे पासवान के साथ बात करेंगे, उनके द्वारा बात करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। We keep each and every one into your precious hands. हर एक को आपके हाथों में देते हैं। You take total control of our lives. आप हमारे जीवन को चलाइए And let us have a blessed Sunday ahead. और आने वाले दिन में आगे पूरे हफ्ते आप एक आशीषित हफ्ते हमें तृप्त कीजिए प्रभु। We give you all the glory and honor. सारी आदर महिमा आपको देते In the हैं। name of Jesus, we humbly pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Church, are you ready for this wonderful worship and word? क्या आप स्तुति आराधना करने के लिए तैयार हैं? Get geared up. आए तैयार हो We're जाए going to witness this wonderful moment with the Lord and Savior Jesus Christ. और हम ये साक्षी बनेंगे परमेश्वर के समय के लिए। And as today is a day of appreciations to our pastor, और आज के दिन में जैसे हम मनाते हैं let us be reverent to the word and give all the glory and honor to God. और इसीलिए आदर के साथ हम वचन को भी सुनेंगे और परमेश्वर हमसे आज के दिन क्या बात करेंगे उसके लिए हम तैयार रहेंगे। Thank you. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में करना चाहते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे। दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड, वी शैल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। आमीन। आज का दिन परमेश्वर का दिन है। ये सुबह के कलीसिया में आप सबका स्वागत करना चाहते हैं। जैसे ही रविवार सुबह आप हमारे साथ इकट्ठा आए हैं, आप सबको परमेश्वर आशीष करे। एंड एज वी वर्शिप द लॉर्ड, जैसे हम उनकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। बी कनेक्टेड विद अस कंटिन्यूअली एज वी वर्शिप द लॉर्ड, एज वी सर्व हिम। हम मांगते हैं आज भी एक दिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हम सब के लिए आशीष का दिन रखेंगे। हालेलुया। Even this day is the day the Lord has made and we shall be blessed, we shall rejoice, we shall give glory to the Lord alone. Amen. आइए उत्साह के साथ ताली बजाते हुए हमारे यीशु का नाम हम ऊंचा उठाएंगे। Hallelujah. Let's all clap our hands, join along together as we lift up our praise to the King of Kings who's worthy of all praises. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. As we see you, we find strength to face the day. 'Cause in your presence, all our fears are washed away. Are washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord
Hallelujah. With that is praise is rising. Hearts are turning to you, Lord Jesus, even this day, because this is the day of the Lord. Hallelujah. ये दुनिया, ये दिन परमेश्वर का दिन है. हमारा परमेश्वर स्तुति आराधना के योग्य है. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. 'Cause in your presence, all our tears are washed away, are washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Together, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Come on your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. Return to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. 'Cause we see you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. 'Cause in your presence, all our fears are washed away, are washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Let's lift our hands. Hosanna, Hosanna, come on your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna. Let's lift our voices together. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. Together. 'Cause in your presence, all our fears are washed away, are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. 'Cause in your presence, all our fears are washed away, are washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, 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 come on your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Come on your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Come on your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Come on your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. जोरदार ताली बजाकर हम यीशु का धन्यवाद करेंगे. We welcome you here, Lord Jesus. Because you deserve all the glory, honor and praise. हम आपके स्वागत करते हैं यीशु. हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप सारे आदर, महिमा, स्तुति की योग्य हैं. Hallelujah.
बाइबल में लिखा है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be opened unto you। तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति में बाइबल में लिखी परमेश्वर हमारे द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। पर आज का दिन परमेश्वर के दिन पर खुशी, आनंद, शांति, समाधान के साथ हम अपने हृदय को खोलेंगे परमेश्वर के पास और कहेंगे प्रभु आप प्रवेश हो जाइए, मेरे जीवन में प्रवेश हो जाइए, मेरे कलीसिया में, मेरे परिवार में आप प्रवेश कीजिए यीशु मसीह। हालेलुया। जो भी हम मांगते हैं बाइबल में लिखा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने से हमें सब कुछ दिया जाएगा। Whatever we ask according to the will of the Father, we receive it. Amen. So उत्साह के साथ ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मांगा जो मैंने वो मिल गया है। मांगा जो मैंने मिल गया है, ढूंढा जिसे पाया उसे, देखो दरवाजे खुल गए हैं, मेरी दुआएं सुन ली तूने। मांगा जो मैंने मिल गया रे, ढूंढा जिसे पाया उसे, देखो दरवाजे खुल गए हैं, मेरी दुआएं सुन ली तूने। तारीफ तेरी होठों से मेरी यीशु मसीह, कैसे करूं रे ये गाए या वो नाचे, जो भी चाहे करे वो करे। कैसे बताए कैसे दिखाए जो है इस दिल में तेरे लिए हो, कोई न जाने कोई न माने किया जो तूने मेरे लिए। आइए सब साथ में मांगा जो है, मांगा जो मैंने मिल गया है, ढूंढा जिसे पाया उसे, देखो दरवाजे खुल गए हैं, मेरी दुआएं सुन ली तूने। तारीफ तेरी होठों से मेरी यीशु मसीह, कैसे करूं रे दिल की गाए क्या वो नाचे, जो भी तू चाहे करे वो पढ़े। कैसे बताए कैसे दिखाए जो है इस दिल में तेरे लिए हो, कोई न जाने कोई न माने किया जो तूने मेरे लिए। हाँ कैसे बताए कैसे दिखाए जो है इस दिल में तेरे लिए हो, कोई न जाने कोई न माने किया जो तूने मेरे लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यीशु कहते हैं He who is forgiven much loves much। जिसका माफी ज्यादा हुआ है वो ज्यादा प्रेम करता है। और यीशु ये भी कहते हैं जो बीमार है उसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। Those who are sick need a physician। जब यीशु इस दुनिया में थे, जब उनके चेलों के साथ वो सेवकाई कर रहे थे, बहुत सारे लोग यीशु को कुछ कुछ कहते थे, पीछे पीछे कुछ कुछ कहते थे और सोचते थे कि यीशु महान है, पवित्र है, इतना महान कार्य कर रहे हैं, कि ये क्यों ऐसे पापियों के बीच चल रहे हैं, ये क्यों ऐसे इतना प्रेम सबको दिखा रहे हैं। ऐसे सोच के विचार के साथ यीशु के साथ बैठने के वक्त परमेश्वर यीशु खुद कहते हैं कि जो बीमार है उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। All those who are sick, they need a physician। और फिर हम देखते हैं जब मेरी मैगजीन यीशु के पास आकर वो आकर खड़े होकर चुपचाप बैठकर रो रही है, आंसू बहा रही है। वहाँ बैठे हुए टैक्स कलेक्टर वहाँ बोलता है, फरीसी बोलता है, सब लोग सोच रहे हैं और कहते हैं अरे यीशु आप नहीं जानते कि ये जो स्त्री खड़ी है कितनी पापी है। और यीशु कहते हैं जिसका पाप ज्यादा क्षमा होता है वो ज्यादा प्रेम भी करता है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर की कृपा के बिना हम कहाँ रहते? Where would we be without the grace of the Lord Jesus Christ? अगर परमेश्वर ने अपनी आंखों को हमारी ओर नहीं फेरा होता तो आज हम कहाँ नाश हो जाते? Where would we been destroyed? But the Bible says, वचन कहता है, John 3:16 says, God so loved the world। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। हम कभी अपने प्रेम के बारे में घमंड नहीं कर सकते। We cannot boast about how much we love the Lord, because Bible says
He loved us first. वचन कहता है उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया। हम कितना भी कहे, कितना भी तारीफ करें, हम कितना भी कैसे दिखाएंगे कि हम प्रभु से कितना प्रेम कर सकते हैं। We cannot, we want to show out how much we love the Lord, but we cannot so much, like express it out. हम बाहर दिखा नहीं सकते हैं कितना प्रभु से प्रेम करते हैं। पर परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला पूरा दुनिया के सामने अपना प्रेम को उस क्रूस पर प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। उत्साह के साथ कैसे बताएं, कैसे दिखाएं जो इस दिल में आपने हमारे लिए किया। हम कहाँ थे, आज परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आपको खड़ा किया है। Isn't it grace? क्या ये अनुग्रह नहीं है, कृपा नहीं है? उसका उत्साह के साथ, खुशी के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए आवाज उठाते हुए, ताली बजाते हुए सभी साथ मिलकर, पहले से ही तुझ में चुन लिया मुझे प्रभु, पहले से ही चुन लिया मुझे तूने, नाम लेके जगाई दी है तूने मुझको, और आजादी मिली है तुझमें, पहले से ही चुन लिया है मुझे तूने, नाम लेके जगाई दी है तूने मुझको, और आजादी मिली है तुझमें। तारीफ तेरी होठों से मेरी यीशु मसीह, कैसे करूं रे कितनी गाए, क्या वो नाचे जो भी तू चाहे, करे वो पर, कैसे बताए, कैसे दिखाए जो है इस दिल में तेरे लिए हो, कोई न जाने, कोई न माने, किया जो तूने मेरे लिए हो, कैसे बताए, कैसे दिखाए जो है इस दिल में तेरे लिए हो, कोई न जाने, कोई न माने, किया जो तूने मेरे लिए। उत्साह के साथ मांगो जो मैंने मिल गया, विश्वास के साथ हम गाएंगे। मांगा जो मैंने मिल गया रे, टूटा जिसे पाया उसे, देखो दरवाजे खुल गए हैं, तेरी दुआएं सुन ली तूने। मांगा जो मैंने मिल गया रे, टूटा जिसे पाया उसे, देखो दरवाजे खुल गए हैं, तेरी दुआएं सुन ली तूने। तारीफ तेरी होठों से मेरी यीशु मसीह, कैसे करूं रे गीत ये गाए, क्या वो नाचे जो भी तू चाहे, करे वो पर, कैसे बताए, कैसे दिखाए जो है इस दिल में तेरे लिए हो, कोई न जाने, कोई न माने, किया जो तूने मेरे लिए। हाँ, कैसे बताए, कैसे दिखाए जो है इस दिल में तेरे लिए हो, कोई न जाने, कोई न माने, किया जो तूने मेरे लिए। आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर हम यीशु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अगर आपके बाजू में कोई बैठा है तो उनको देखकर कहो, हम कैसे बताएंगे, कैसे दिखाएंगे जो प्रेम, जो कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हालेलुया। ताली बजाकर हम यीशु को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कोटि कोटि धन्यवाद भी काफी नहीं है। आज का दिन भी परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो आपको आशीष ना करे। Even this day, the Lord's hand is not short that He can't bless you. परमेश्वर दूरी का भी परमेश्वर है और बहुत करीब का भी परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि टूटा हुआ हृदय, एक कुचला हुआ हृदय के सामने परमेश्वर बहुत करीब रहता है। Bible says He's close to the broken-hearted and to such that have a contrite spirit. जो भी परमेश्वर को पूरी हृदय से खोजते हैं, परमेश्वर उनके बहुत करीब रहता है। आज भी ये सुबह के समय में जैसे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना कर रहे हैं, जान लो कि परमेश्वर यीशु आपके बहुत करीब है। Just know that the Lord is very close to you. बाइबल में लिखा है कि दाऊद एक चरवाहा था। उसके फैमिली में इनके 7 और भाई थे, वो 8वां था।
और पूरे परिवार एक अच्छा सेटल्ड परिवार में वो सबसे लास्ट था और वो एक चरवाहा था। हम देखते हैं उसके बड़े 3 भाई तो आर्मी में काम करते थे, वो लोग युद्ध करने जाते थे सौल राजा के साथ, पर दाऊद एक छोटा सा लड़का उस परिवार का, वो एक चरवाहा था। और बाइबल में हम देखते हैं कि जब शमूएल एक राजा को अभिषेक करने के लिए वो जेसी के घर आता है, परमेश्वर के कहने के बाद, आफ्टर गॉड इंस्ट्रक्टेड सैमुएल टू गो एंड अनॉइंट वन ऑफ द सन्स ऑफ जेसी एज किंग। जैसे सैमुएल वहां आता है, वो वो अपने वो पहले बेटे जेसी का देखकर वो सोचता है, वाह ये तो बहुत दिखने में मस्त है, हाइट है, वेट है, आर्मी में काम करता है, युद्धशाली है, इसका मतलब है परमेश्वर ने इसको चुना होगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम जैसे सोचते हैं प्रभु वैसे सोचता है। सौल राजा था, ये जो जेसी का बेटे जो है वो लोग आर्मी में सौल राजा के साथ काम करते थे। सैमुएल वहां खड़े खड़े वो सोच रहा होगा, आर्मी में भी काम कर रहा है, दिखने में भी बहुत अच्छा है, युद्धशाली है, श्योर कि प्रभु ने एक राजा को हटाकर जो युद्ध में करता है, जो उसका एक्सपीरियंस रहेगा युद्ध में, उसको चुना होगा। इसके लिए सैमुएल के मन में सोचा कि प्रभु ने इसको ही चुना है। पर प्रभु कहते हैं नहीं, मैंने इसको नहीं चुना है। God says no, I have not chosen him. God does not see as man sees. परमेश्वर मनुष्य जैसे देखता है वैसे नहीं देखता है। God does not see as man sees. The way we think, the way we plan, it's never same or equal to how God thinks or plans. हम जैसे योजना बनाते हैं, हम जैसे एक सोच रखते हैं, वैसे परमेश्वर कभी सोच विचार नहीं करता है। इसके लिए बाइबल में लिखा है कि हमारा सोच विचार से प्रभु बहुत अधिक सोचते हैं। हालेलुया। उस दिन भी सैमुएल भी मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य के सोच के साथ वो बाहरी रूप चेहरे को देखते देखते सोचता है कि एक राजा को हटाकर मे भी ऐसे हो सकता है कि उसके जो नीचे काम कर रहा है युद्ध में बलशाली है, उसको प्रभु ने नेक्स्ट राजा बनने का एक वरदान दिया है। पर प्रभु कहते हैं नहीं, I don't need people who have experience. I don't need people who maybe from the outward appearance are great. मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो maybe बहुत they might be ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, वो लोग बाहर से ग्रेट है, नहीं तो जो पोजीशन है, जो दुनिया में सोसाइटी में उनका स्टैंड है, वो सब मैं नहीं देखता। जो लास्ट लड़का जेसी का अभी भी जंगल में बैठा है ना, मेरी आंखें उसके ऊपर है। My eyes are on him. Hallelujah. यहाँ सैमुएल का भविष्यवक्ता आया है, पर एक लड़का जो वहाँ जंगल में अपने छोटे से थोड़े से पेड़ के साथ बैठा है, मेरी आंखें उस पर है। हालेलुया। मेरी आंखें उस पर है। आप जहाँ कहीं भी हैं आज, जान लो कि प्रभु की आंखें आपके ऊपर है, क्योंकि प्रभु आपको मनुष्य देखते समान नहीं देखते। God does not look at you just the way as man sees you. He's not interested in any of your outward appearance or any of your talents or what you have or what you are. God is looking at you because He weighs your heart. परमेश्वर आपके हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, और प्रभु कहते हैं कि मैंने ऐसे एक मनुष्य को चुना है जो मेरे हृदय के करीब है। A man after my own heart. Such a man I have chosen. Hallelujah. Even आज का दिन परमेश्वर आपको बुलाए हैं, चुने हैं, दुनिया से अलग किए हैं, आपके हृदय को वो जांच के देखते हैं। आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। एक छोटे से लड़के को परमेश्वर ने सौल राजा से भी बढ़कर राजा बनाया। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर प्रभु की आंखें आपके ऊपर है तो वो काफी है। If God's eyes are on you, I think that's more than enough to live this life. हालेलुया। आज भी अपने आप को नम्र करेंगे परमेश्वर के सामने और कहेंगे, प्रभु मैं भी आपके हृदय के बहुत करीब रहना चाहता हूँ। I want to be close to your heart, Father. I want to be close to your heart. I want to understand your heart. आपके हृदय को मैं समझना चाहता हूँ। आप कैसे देखते वैसे मैं देखना चाहता हूँ। आप कैसे सोचते वैसे मैं सोचना चाहता हूँ। I want to be like you, Lord Jesus. मैं आपके समान रहना चाहता हूँ। Come on, let's all close our eyes and look up to Jesus. अपने आप को हम नम्र करेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, आपके करीब आना चाहता हूँ, आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करना चाहता हूँ। प्रभु I want to worship you truth and in spirit. जैसे मनुष्य देखता है वैसे नहीं प्रभु, मेरे आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। आपने मुझे चुना है, नाम से पुकारा है, इस दुनिया से अलग किया है। आपका वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, चुने हुए कम हैं। Many are called indeed, but very few are chosen. Father, we want to be among those chosen people.
to inherit every blessing that you have kept in store for us. जो भी आशीष आपने हमारे लिए रखा है, उस सब का भाग्य बनने के लिए हम सबको आपने चुना है। इसके लिए धन्यवाद यीशु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका गौरव करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
मेरी जान भी बस तू है, हाँ ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है, अब्बा खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है, अब्बा खुदा। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। सभी आवाज उठाते हुए जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। 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 मेरी एक ही तमन्ना है यीशु, मेरी एक ही तमन्ना है यीशु, आपके साथ मैं रहना चाहता हूँ। I want to be where you are, dwelling daily in your presence, dwelling daily in your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु Hallelujah. धन्यवाद कहते हैं प्रभु, सुंदर समय जो आपने दिया Hallelujah. आज के सुंदर रविवार के दिन में भी आपने हम सबको इकट्ठा किया आज की स्तुति आराधना करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। We thank you Lord Jesus। आपके समान कोई नहीं है प्रभु, आप ही हमारे लिए सब कुछ है और सही समय में पूरा करने वाले परमेश्वर आप है यीशु। योना के समान, जोना के समान प्रभु आज भी हमें धन्यवाद हृदय के साथ है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे परमेश्वर कैसे हैं। अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाले प्रभु, इतने महान प्रभु हैं आप। और आज भी प्रेम के सागर होते हुए आज भी हमारी हर तमन्ना, हर एक ख्वाहिशों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं और उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। जो कुछ भी हमारी जरूरतें हैं, हर चाहते हैं, हर एक चीज को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं। We thank you Jesus। सारी स्तुति महिमा आपको दी थी यीशु। हर एक चाहत को हम आपके हाथ में रखते हैं, हर इच्छाओं को आपके हाथ में रखते हैं। आपके वचन अनुसार हर एक चीजों को पूरा कीजिए। एक कलीसिया होके, एक परिवार होके प्रभु, एक मन में आपकी आराधना करने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे बीच मौजूद है, हर एक के घरों में मौजूद है, उसके लिए धन्यवाद यीशु। हर बंधन को आपकी उपस्थिति तोड़ रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पासवान को ढक के आप उनके द्वारा आज भी हमारे साथ बात कीजिए। आज के हफ्ते के लिए एक सामर्थ हमें आपके वचन द्वारा मिले, आप ऐसे ही करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। सारी स्तुति महिमा हम आपको देते हैं। ये हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे जीवन में आने दीजिए। सारी स्तुति महिमा प्रशंसा गौरव हम केवल यीशु नाम को देते हैं। यीशु मसीह की पवित्र अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवते पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है। आमेन। आज की हफ्ता भी हमारे लिए आशीष बनने वाला है। आमेन। हालेलुया। जय मसीह की सबको, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। आप सबका स्वागत हम यीशु मसीह के नाम में हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च के लाइव स्ट्रीम में करना चाहते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन परमेश्वर का दिन है। हालेलुया। जैसे आप जुड़े हमारे साथ, ये लाइव स्ट्रीम को आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस लाइव पर जुड़कर
परमेश्वर का वचन सुन के एक नया आशीष पाए। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज भी हमसे बात करेंगे, उत्साह के साथ हमारे आत्मा में बात करके हमें एक नया जीवन देंगे। द वर्ड ऑफ गॉड ब्रिंग्स लाइफ। वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में जीवन है। और जैसे हम परमेश्वर का वचन आज भी सुनेंगे, जैसे पासवान हमारे बीच में वचन बांटेंगे, अपने आप को हम तैयार करेंगे। अपने बाइबल खोल के बैठिए, बुक्स लेना है, नोट्स लेना है, ले लीजिए। उत्साह के साथ जुड़े रहिए। कंटिन्यूसली लिसन अटेंटिवली टू द वर्ड ऑफ गॉड। और आज भी परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। हालेलुया। 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 आप उत्साहित हैं? Are you excited today? परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला है The Lord loves you और हम भी आपसे प्रेम करते हैं। and we also love you. हालेलुया। Hallelujah. आज जो पास्टर्स डे करके पूरा दुनिया में सेलिब्रेशन जो करते हैं, We see that even this day, the whole world is celebrating Pastor's Day. हम परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। हमको परमेश्वर ने एक सेवक बनवा के परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए, परमेश्वर से अभिषेक देके उनके राज्य के लिए काम जो करने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। I am very grateful to the Lord that He has chosen me and has given me the opportunity to share His word, to do the ministry, to build His kingdom for His glory. थैंक यू जीसस। I thank you, Lord Jesus. एक पासवान का काम क्या है? What is the work of a pastor? अपने कलीसिया की संभालना है, He has to take care of his church एक एक जन के लिए प्रार्थना करना है। for every member. उससे सबसे अच्छे काम क्या है? And above all else, what is it? उनको सही मार्ग में लेके जाना है। To lead the people in the right path. परमेश्वर को बस लेके जाने के लिए सही रास्ता दिखाना है। And He is supposed to show the right path to go towards अगर God. परमेश्वर के बारे में सही मार्ग नहीं दिखाएंगे तो वो गलत मार्ग में चला जाएगा। And if He does not lead the people of God in the right path, they will go astray. कोई जगह में क्या क्या करते हैं, अगर कोई भी परिवार कोई गलत किया तो उनको भी कोई बात नहीं है, अच्छा है करके उनको सर्टिफिकेट कोई देता है। We see in many places that if at all there is a family that does wrong or is in the wrong path, what people do is they don't correct them, nor do they even tell. They just appreciate, yeah, you're doing the right path. अगर सच्चा परमेश्वर का दास क्या करता है? But a true man of God, what does he do? अगर जो गलत करते हैं तो उसे गलत करके बताना है। What is wrong, he says as wrong. He admonishes them. अगर वो गलत बताने के बाद वो समझता है जो पास्टर ने हमें कुछ गलत बात करता है, हमारे साथ गुस्सा करता है करके इस तरफ गलत सोचता है। And when they are corrected or admonished by the pastor, many people they think that oh, the pastor is angry on us, or he's not, he's just correcting us. अपने बेटे को, छोटी बच्चे बेटे को अगर कोई गलत किया तो अपना बाप क्या करता है, उनको शिक्षा देता है, उनको चिल्लाता है, उनको सही मार्ग दिखाता है। We see that when children go astray, when they get caught up in something wrong, the parents always correct them and get them on the right path. अगर सही मार्ग दिखाने से जो सही रास्ते में बच्चा जाएगा। And when the parents show the right path, the child comes back on the right इस path. तरफ से कलीसिया में सही सबसे सही परमेश्वर वचन के थ्रू जाने के समय में परमेश्वर को समझा सकता है। And when the church preaches the right word of God, that's when we can go on the right path इस towards Christ. संसार का पापों से, संसार से अलग होकर हम सही मार्ग में हम जा सकते हैं। We have to be away from the sins of this world and we can walk on the right आज and जो narrow परमेश्वर path. आज संदेश दे रहा है, पवित्र जो हृदय है वो भाग्यवान है करके जो बता रहा है। And today the word of the Lord, we're going to meditate on the word that says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Matthew chapter 5 verse 8 मत्ती 5:8. इसमें परमेश्वर जो लिखा है, The word says, कौन परमेश्वर को दर्शन कर सकता है? Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो मन में शुद्ध मन, And the word says, pure in heart. अगर वो शुद्ध मन हो गए तो वो परमेश्वर दर्शन कर सकते हैं। And the word says that if they have a pure heart, they shall see God. आपका हृदय कितने शुद्ध है How pure is your heart this day? और कितना अशुद्ध है? And how impure is it? अगर आपको हम क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बताएं? भाई एकदम शुद्ध हृदय करके बताएंगे। If we question you directly, you will say that, oh, I have a very pure heart. तो आपके बारे में कौन बताने वाला है? So who's going to
actually testify about you. अगर आपका हृदय सच्चा है, अच्छा है, पवित्र है, अगर कौन आपको सर्टिफिकेट दे रहा है? And who is the person who can certify you saying or endorse you saying that yes, you have a pure heart? हम यिर्मयाह का किताब पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9 to 10। यिर्मयाह का किताब हम खोलेंगे 17, 9 और 10। The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता ये है। जो वचन में जो लिखा है, हर चीजों से जो मन जो है अधिक धोखा देने वाला चीज है। It says that the heart is deceitful above all things. उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? एक मन के अंदर, एक इंसान का मन के अंदर क्या है करके कोई भी व्यक्ति उसके बारे में मालूम नहीं कर सकता। And the word says that no one can, fathom what the heart thinks or what goes on in a heart because it is desperately wicked. क्योंकि वो जो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, किस तरफ सोचता है करके किसी को भी नहीं पता है। And what it thinks or what it does or the steps that it takes, no man can understand it. आपके सामने कोई इंसान खड़ा है, Suppose that there is a person standing in front of you, आपके सामने मुस्कुराता है, smiling at you, लेकिन उनके हृदय के अंदर क्या है करके आपको नहीं पता है। but you cannot understand what goes on in his heart. और कोई इंसान मीठा मीठा बात करता है, There are others who, use very sweet and flattering और वो words. आपका बारे में अगर एकदम प्रेज कर दे, बहुत अच्छा है भाई, ये एक अच्छा फ्रेंड है करके, एक अच्छा इंसान करके आपको बताए तो आप बहुत खुश हो जाता And they है। might flatter you saying that, oh, this person is a very good person, very kind person, they might pour out sweet words towards you. अगर वो मीठा मीठा बात करने से आप एकदम बिगड़ हो जाता है। And it so happens that when you hear such sweet words, you falter, you get flattered. अगर सही बात आपको कुछ बताए तो आपको कड़वा लगता है। And if at all someone confronts you with the truth, you feel it very bitter. जो इसके लिए जो बता रहा है, वचन में जो लिखा है, कोई भी इंसान का हृदय के बारे में किसी को भी ना पता है। And the word of God says that no one can understand the mind of such the heart. लेकिन एक इंसान है, एक परमात्मा है, एक ही जन देख सकता है आपका हृदय में क्या है। But there is only one, the Lord, who can search and test your heart. वही जो लिखा है वचन 10 में जो लिखा है, We'll read 10. मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन जो उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आपको जो मन का अंदर की बात है वो जो परमेश्वर देखता है। And we see that the Lord is the one who searches the inner depths of your जो heart. वचन में लिखा है वो पूरा हृदय को परमेश्वर चेक करता है। And it says that He searches the heart. मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर को आपके हृदय के बारे में जानते हैं। The Lord is aware about your heart. अब सब कुछ छुपा सकता है। You can hide a lot of things. अब आपके सामने आपको पति को, पत्नी को, बच्चे को, माँ को, बाप को सब कुछ छुपा सकता You है। can hide things from your husband, your wife, your parents, your brothers, your sisters, लेकिन आप परमेश्वर को छुपाने सीखेंगे। but you cannot hide anything from ये God. हृदय के अंदर से एक इंसान अच्छे काम, अगर इंसान अच्छा है तो अच्छे सबसे बात करेंगे। We see that if the heart of the man is right, the words also are sweet. हम वचन में पढ़ेंगे, मत्ती 15 अध्याय में पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 8। मत्ती 15:8. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. उनकी विधवाएं Matthew 15:8. जो वचन में जो लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। जो अपने मुंह से परमेश्वर के बारे में अच्छे से बात करता है, स्तुति करता है, लेकिन उसका मन दूर है। We see that with their lips they honor God, they worship God, they sing praises, but their hearts are very far away from the Lord. और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं,
क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। It says, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. ये जो परमेश्वर के जो दास लोग जो पुराने नियम में जो लिखा है, बराबर और पढ़ेंगे। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। इस सोसाइटी में मतलब जो परिवार में जो समाज में जो चाल चलन जो चलता है उसको फॉलो करके और वो बता रहा है हम परमेश्वर का आराधना करते करते बता रहा है। It says that in vain they worship the Lord, and it so happens that the commandments that are given by men, by the forefathers or the society, they preach it as the doctrines of God. मेरा प्रिय परमेश्वर जो कहते हैं सच्चाई, परमेश्वर सच्चाई के बारे में बात करने वाला Remember, है। my beloved, our God is a God of truth, and He only speaks the अपने truth. दिल और अपना मन और अपना सामर्थ हर चीज परमेश्वर को पसंद होना चाहिए। And the Lord must be pleased with all of our hearts, our minds, our thoughts. और अपने चाल चलन में अपने जो विचार जो गलत सोचने से क्या होने वाला है। And when our minds are led astray and we do not think in line with God's word, what happens? हम बताएंगे और कंटिन्यू करेंगे। When He called the multitude to Himself, He said to them, "Hear and understand. Not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth, that defiles a man." तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये जो बात समझ लीजिए, जो कोई भी इंसान जो मुंह से जो खाता है वो अशुद्ध नहीं होता है। It says that what a man eats through his mouth, that does not defile him. जो मुंह से जो निकलता है, बाहर जो निकलता है वही अशुद्ध बन जाता है। And what comes out of his mouth, that is the thing that defiles him. वो कैसा हो सकता है? How is this possible? जो कोई इंसान को आप मीठा एकदम आशीष शब्द बात किया तो वो सामने वाला इंसान खुश हो जाता You है। know, when we speak words of blessings to another person, they are pleased and they are happy. अगर कोई इंसान एकदम दुखी में है तो आप एकदम प्रेम से कंफर्ट लैंग्वेज से अच्छी तरह बात करने से उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है। And suppose that somebody is very burdened, they are very sad. When you speak words of comfort over them, they feel satisfied and अगर जो comforted. टूटा हुआ दिल से जो रोते रहते हैं उनके ऊपर और आप टोकर करेंगे और उनको खिलाफ बात करेंगे तो वो और टूट जाएगा। And if at all there is a person who is very broken, if at all your words go and it's like condemning words or hurtful words, it goes and kills them even more. और सबको अधिकार है अपने मन में जो भी सोच सकता है। Of course, every person has their own right to think whatever they want. आप किसी को कंट्रोल तो नहीं कर सकता You है। cannot force somebody to control someone's thoughts. जो काम करने के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन सोचने से आप कोई किसी को भी कंट्रोल नहीं कर You can सकते हैं। control somebody maybe in their works or what they do on the external, but you cannot control their mind or their thought. आप जो क्या सोच रहा है उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। What do you think? Think about it. आपको जो पता है जो शैतान करके जो लूसीफर को जो कहते हैं, We see about the devil who is Lucifer. जो हम वचन में पढ़ेंगे आइसाया चैप्टर 14 वर्स 13 and 14। यशाया का किताब 14, 13 और 14। इसमें जो लिखा है जो लूसीफर जो शैतान जो गिरा हुआ है वो पहले स्वर्ग राज्य में जते। We see that we speak about Lucifer here, who was first in the heavenly kingdom. वो परमेश्वर का स्तुति आराधना करता था। He was, leading worship there. हम वचन में पढ़ेंगे वो जो है परमेश्वर को स्तुति करने के समय में उसका मन के अंदर गलत विचार आ गया है। We see that as he was a worshipper, there was a wrong thought in his mind. परमेश्वर मुझे उच्च स्थान में रख रहा है। God has lifted me up. हम परमेश्वर की स्तुति आराधना जो करते हैं, I am worshiping the Lord. क्यों मैं भी परमेश्वर बगल में बैठ नहीं सकते? क्यों परमेश्वर का मार्ग में हम भी परमेश्वर बन सकते करके वो उसने सोच लिया है। And we see that he had a wrong thought saying that why not I be God? Why not I sit on the throne? हम वचन 13 में पढ़ेंगे। For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation, on the farthest sides of the north. तू मन से कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के
तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा। वो क्या किस तरह जो सोचा है, आप बात सुनो, वो बात ही नहीं किया, किसी को भी बता नहीं है, लेकिन मन के अंदर सोच लिया। We see that these are the statements that he did not share with anybody, he would speak it out publicly. These were thoughts in his mind. मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, He says, I will ascend on high. मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा। मतलब परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जो बैठा है, वाले जो परमेश्वर से भी मैं अधिक ऊंचा बैठेंगे। He says that he wants to exalt himself even above the throne of God. उनके सामने में बैठेंगे। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। जो इंसान जो स्तुति आराधना करता है, वो जब मतलब वो जगह में मैं बैठेंगे, मुझे सब जन स्तुति करके करके उन्होंने सोच So लिया। he had this thought that as people are worshipping God, I will be seated on his seat, that they will worship me. वचन में कोई भी जगह में लिखा नहीं है लूसीफर ने जो अपने साथियों के साथ बात किया है, मतलब चलो अपन ऐसा बैठेंगे प्लान करेंगे, किसी से कुछ डिस्कस तो किया नहीं है। The word never mentions anywhere saying that Lucifer was seated with his other angels and they were having a discussion regarding this topic. जो वचन में जो लिखा है वो आराधना करने वाले एक सेवक है करके। And the word says that he was an angel who worshipped God. लेकिन उन्होंने गलत विचार किया, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग राज्य से नीचे फेंक दिया। And we see that because of that one wrong thought of his, he was thrown out of heaven. और उनके साथ साथ में हजारों कोड़ी मतलब जो सेवक भी साथ में गिर। And we see that when he was cast out of heaven, the angels who were with him, they were also cast along with him. इसीलिए आप किसके साथ जोड़ना है, किसके साथ रहना है, बहुत समझने की बात है। So my beloved, just consider, who are you with, who do you fellowship with? जो लूसीफर के साथ में जो गिरा हुआ है सब शैतान लोग पूरा किसी को पता नहीं, लेकिन उनके साथ में थे इसलिए पूरा गिर गया है। We see that the other angels who were with him, they didn't have this particular thought, but because they were connected with him, because of his thought, they fell with him. अभी आप समझ लीजिए, कोई इंसान कोई चोरी करने की जा रहा है, कोई बैंक में कुछ डाका डालने की जा रहा है। Just consider there's a man who's, he goes to the bank to rob. किसी को गाड़ी वाले को बुला रहे, चलो तुम मेरे को ये जगह में छोड़ दो। He goes and calls a driver saying that please come and just drop me और here. किसी को बोलते मेरे को साथ में इधर तक आ जाओ करके किसी को साथ में लेके जा रहा है। He calls another person to please accompany me, come with me to this bank here. जो इस तरह तो किसी के भी साथ में मतलब जो एक ग्रुप बन जाता है। And when he collects such people along with him, they become a group. समझो बहुत जन 15-20 दिन चला गया। Imagine that he had a group of 20. उधर 2-3 आदमी अंदर घुस के सब चोरी कर दिया। And consider that only 2 or 3 went into the bank, they robbed the bank. और उसको पुलिस पकड़ जाता है। And suppose that they were caught by the जो police. चोरी जो किया है सिर्फ उसको नहीं पकड़ता है। Remember that the police does not, arrest only the one who robbed. उनके साथ में जो संबंधी किया है सबको वो पकड़ जाता The है। police arrests everybody who was connected to that particular person. तो जो इसमें हमें ये समझना है, We must understand through this. अगर आप परमेश्वर के जो सही मार्ग में चलने वाले के साथ आपको जोड़ना है। Understand that you are supposed to be connected and fellowship with people who are of the Lord. अगर आपने सही मार्ग सही रास्ता दिखा नहीं है, If you're not on the right path, सामने वाले आपके सामने मीठा बात करेंगे, there are people who flatter you with sweet words. वो परमेश्वर का अच्छे वचन भी सुनाएंगे, They might even preach good word of लेकिन God. आपको संभालना है, But जरूरी you है। have to be, aware. You उसका have बारे to में discern. लिखा है 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 22। दूसरा तिमोथी 2:22. इसमें जो लिखा है किसका साथ आपको जोड़ना है। And it says about who are you supposed to fellowship with. Flee also, 2 Timothy 2:22. Flee also youthful lusts, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर,
जो व्यक्ति शुद्ध मन के साथ परमेश्वर का जो स्तुति आराधना जो करता है, उनके साथ में आपको साथ में रहना He है। says that we must pursue righteousness, faith, love, peace with those who call upon the Lord with a pure heart. और अंतिम दिनों तक तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। And they are the people, the ones with the pure heart are the ones who help you and lead you towards eternal life. जो आपको जो पता नहीं है, जो कौन जो इंसान किस तरफ से आपके साथ जो व्यापार जो You करता know, you है, can never consider or judge from the outside who or what kind of a person is. जो हमें परमेश्वर का वचन भी सुनना है, You must hear the word of God, उनका आज्ञा पालन करना है। obey the word of अगर God. उनका आज्ञा पालन करना है तो उनका वचन हमारे हृदय के अंदर होना है। And if you have to obey the word of God, you have to have the word first of all inside of you. हम वचन में पढ़ेंगे ये जो यिर्मयाह chapter 29 verse 13। Jeremiah 29:13. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम अगर संपूर्ण मन से, पूरा सच्चा पूरे मन से परमेश्वर को तुम ढूंढेंगे तब When you seek the Lord with all of your heart, you will find Him. परमेश्वर को मिल सकता है। You will find Him. वचन में जो लिखा है, जो शुद्ध हृदय में जो परमेश्वर को जो खोजना है, वो परमेश्वर का दर्शन And करेंगे। we read in the book of Matthew that says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." और इसमें जो लिखा है पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ, मतलब परमेश्वर को खोजना है। And here we read that when you seek the Lord with all of your heart, you will find Him. अगर आप पूरे मन के साथ परमेश्वर को खोजने से And when you seek the Lord with all of your heart, परमेश्वर आपको दर्शन करेंगे, He will reveal Himself to you. परमेश्वर आपसे बात करेंगे। The Lord will speak to you. लेकिन और एक चीज इसमें ये जो समझना है, परमेश्वर का वचन का बहुत आवश्यक है। And understand that the word of God is very necessary. अगर परमेश्वर वचन को अपने हृदय में रखना है, You have to have the word of God inside of you. इसमें भजन संगीता जो लिखा है, भजन संगीता Psalm 37 verse 31। भजन संगीता 37 अध्याय 31 वचन। The law of his God is in his heart. None of his steps shall slide. उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसका पैर नहीं फिसलते। हालेलुया। Hallelujah. ये वचन में जो लिखा है, परमेश्वर का जो व्यवस्था वचन उनके उसके साथ में हृदय है, में बनी रहती है, उनके हृदय में बनी रहती है। उसके पैर नहीं फिसलते। अभी समझ लीजिए, परमेश्वर का वचन आपके हृदय का अंदर रहने के समय में आपका जो पैर इधर उधर गिरेगा नहीं है। It says that when the law of the Lord is in your heart, your steps, your foot will not slip. अगर परमेश्वर का वचन, इंसान का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन, आप भी बोलिए परमेश्वर का वचन। Just say it together, God's word. परमेश्वर का वचन जब आपके साथ है, आपका पैर फिसलेगा नहीं. हालेलुया। Hallelujah. अगर परमेश्वर का वचन आपके साथ रहने के समय में, When the word of the Lord is with you, abides in you, परमेश्वर आपको सही मार्ग में दिखाएंगे। the Lord will guide you on the right path. और परमेश्वर का वचन में जो लिखा है, वर्ष 23 में जो लिखा है, सही अध्याय में 23, भजन संगीता 37:23। The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। हालेलुया। Hallelujah. अगर आप परमेश्वर के बारे में अगर आप सुन के उनके अनुसार बात करेंगे, उनका अनुसार चलने से परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रेम से रहने वाला है। And when you heed the word of the Lord will love you. इसलिए जो वचन में जो लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेले के साथ जो बताया था, जो मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37, मैथ्यू 22:37 में लिखा है, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." यीशु ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यीशु मसीह जो बता रहा है, अर्धा अर्धा मतलब जो आपका पूरा हृदय के साथ में है। He says that with all of your heart.
तुम्हारे पूरे हृदय के साथ, पूरा आत्मा के साथ, पूरे मन के साथ में परमेश्वर से प्रेम करो। And he says that you love the Lord your God with all of your heart, soul, mind and strength. अगर इस तरफ से, अगर पूरे मन से प्रेम, प्रभु से प्रेम करने से, And when you love the Lord with all of your heart, और परमेश्वर क्या करने वाला है? and what is the Lord going to do? यिर्मयाह का किताब 32 अध्याय 38 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 38। या यिर्मयाह का किताब 32:38। They shall be my people, and I will be their God. Then I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for the good of them and their children after me. वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। अगर तुम सही मार्ग में, मतलब पूरे मन के साथ परमेश्वर को प्रेम करने से, When you love the Lord your God with all of your heart, और हम परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाएंगे, we become the children of the Most जो High. वचन में जो कहा वो अपने परमेश्वर बन जाएगा। And it says that we will be His people and He will be our God. और वो वर्ष 39 में जो लिखा है, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा He says He'll give them one heart and one way, कि वे सदा मेरी भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। अपने वंश का मतलब परिवार के साथ मतलब हमें आशीष मिलना है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का भय मान के रहना है। If you want a blessing for you and your family, you have to live a life of the fear of God. जो वचन में जो लिखा है, परमेश्वर का भय मान के रहते, परमेश्वर हमें देने वाला है। And it says that He is going to give us a heart that fears Him. और अगर परमेश्वर का भय मान के परमेश्वर का सही मार्ग हमें दिखाने के लिए मालूम होगा तो हमारा रास्ता सही मार्ग में जाएगा। And then once we know the Lord, the fear of the Lord, we will be on that right path, the one way. मैथ्यू में जो लिखा है, तुम पूरे मन के साथ, पूरे सामर्थ के साथ, पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर को प्रेम करने के लिए जो बताया In the book है, of Matthew we just read that we have to love the Lord our God with all of our heart, soul, mind and strength. और परमेश्वर तुम्हें क्या जवाब देने वाला And है? what is the answer that God gives you? वर्ष 40 में जो लिखा है, And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good, but I will put my fear in their hearts, so that they will not depart from me. मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपने भय में उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। हालेलुया। Hallelujah. आपको मतलब कभी अलग होने के लिए नहीं देंगे कि जो He will परमेश्वर ने never बताया let है। you go astray or separate अगर from तुमने Him. अगर परमेश्वर की सच्चाई मन से, सच्चाई दिल से, पूरा मन से परमेश्वर को स्तुति करके आराधना करते समय में परमेश्वर तुमको मदद करने के लिए, तुमको साथ साथ हमेशा चलने वाले परमेश्वर है। And when you worship the Lord in true spirit, when you seek the Lord with all of your heart, He Himself will never depart from you. और जो वर्ष 41 में जो लिखा है, Yes, I will rejoice over them to do them good, and I will assuredly plant them in this land with all my heart and with all my soul. मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा, और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। कि तुम किस तरफ सारे मन से, प्राण से परमेश्वर को तुम प्रेम करते हो, उससे अधिक परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अधिक सामर्थ से, प्रेम से तुम्हारे जीवन में करने वाला है। How much you love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. It says that here the Lord will rejoice over you and He will give you the love that you require. अभी तो देश में जो काफी महामारी चल रहा है, काफी अकाल चल रहा है, तकलीफ चल रहा है। We see that we are going through a time of a crisis, pestilence, famines. अगर तुम परमेश्वर को तुम सच मन से, सच्चाई से स्तुति आराधना करने समय में परमेश्वर क्या करने वाला है? But when you worship the Lord, you love the Lord your God with all your heart, what does the Lord render to you? जो verse 42, For thus says the Lord, just as I have brought all this great calamity upon this people, so I will bring on them all the good that I have promised them. देख, यहोवा यूं कहता है, जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी,
वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूंगा। परमेश्वर ने जो जीवन में कुछ भी कार्य आपके जीवन में कुछ किया तो all that you have done in your life, if at all anything you have done against the Lord, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूंगा। और उनका वचन के अनुसार परमेश्वर भलाई भी करने वाला we है। see that even though the Lord may have brought some great calamity upon you because maybe of your wrongdoing or तुम्हारे because जीवन you में strayed कुछ नष्ट astray. हो गया तो परमेश्वर तुमको लाभ करके देने वाला And here the है। Lord says that He's going to turn around your situation, turn your loss into profit. जिसके करने का वचन मैंने दिया है। And this is the word of the Lord to you. इसलिए यह देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो। हालेलुया। ये मेरे प्रियो, इसलिए क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। My beloved, listen to the word of God. परमेश्वर के वचन को विश्वास करना है। Believe the word of the Lord. तो ये परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने का नहीं और उसके अनुसार चलना पड़ेगा। Just don't hear the word of the Lord, walk according to its word. अगर वो वचन आपके हृदय का अंदर नहीं है तो वो वचन में कुछ काम नहीं होने वाला And if है। at all you do not have the word residing inside of you, then it's not going to work in your life. अगर आपने स्थिर नहीं होते तो शैतान आके आपको वचन को उठा के लेके जाने वाला है। If you are not steady or don't have a good foundation, Satan will come and pluck those words away वो from you. जन सालों में मसीह में बन के रह के लेकिन अगर वो स्थिर नहीं हुआ तो शैतान उनका पूरा उनका विश्वास को बाहर निकल We जाएगा। see that there are a lot of believers who are born a believer, but if they do not have the word of God inside of them, whatever they have also Satan will pluck it away. हम वचन में पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 19। मत्ती 13:19. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जो मार्ग के किनारे में जो बोला गया था करके परमेश्वर ने इसका बारे में जो बताया था। And we speak about the parable where the seeds were scattered on the wayside. वचन सुन जाता है, पूरा संसार आज दुनिया में हर जन परमेश्वर का वचन सुन रहा है। We see that they hear the word of the Lord. Even this day, the whole world hears the word of God. अगर वो वचन के बारे में अच्छी तरह समझा नहीं है, अच्छी तरह उनके लिया नहीं है तो क्या होने वाला है? But if they do not understand the word of God, what happens? वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो शैतान आके जो आपने से सुना, जो वचन को निकल जाता है। And we see that the evil one comes and plucks it away, snatches it away from आपके them. हृदय में वचन अभी नहीं है, Now you do not have the word, तो आप तो शैतान के चाल चलन में गिर जाएगा। and so you falter and you fall into the traps of इसीलिए क्या Satan. करना है? और दो तीन चीज के बारे में हम बात करके हम प्रार्थना करेंगे। ये जो याकूब का किताब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26 हम पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय 26 वचन। If anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this one's religion is useless. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अगर जो इंसान जो बता रहा है मसीह में है कि उनको सबसे पहले अपने जीवन को कंट्रोल करना है। We see that if at all there is one in Christ, he has to first bridle his tongue. अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो अपने हृदय को धोखा देता है। And if at all he does not bridle his tongue, it means he is deceiving his own heart. और उसकी भक्ति व्यर्थ है। और उनका जो भक्ति व्यस्त है, मतलब And जो कलीसिया में जाने दो, प्रार्थना करने दो, वचन सुनने दो, सब वेस्ट होता है। And if at all he goes to the church, he goes, listens to the word of God, all his religious activities are in vain. वो जन एक्टिंग करेंगे, There are a lot of people who, act, they लेकिन pretend. कौन एक्ट करके आपको समझना है। You must understand those who are of the pretense and those who are truly the people of God. वचन में पढ़ेंगे 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 22। पहला पत्रस 1:22. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart.
अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रतीक के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तुमने पवित्र वचन को सुन लिया है, अपने मन में परिवर्तन हो गया है। It says that you have already received the word of the Lord, you have obeyed the truth. परमेश्वर का वचन जो कहते हैं ये दूसरे से प्रेम से रहना है। It says that you love one another fervently, sincerely. अगर आपको प्रेम से रहने के लिए कहाँ से शुरू होता है? Where does this living in love start from? अपने अपने घर के अंदर प्रेम से रहने की शुरू करवा लीजिए। It begins from your own home. Start living in love. अगर अपने घर के अंदर प्रेम से रहने के समय में आप बाहर भी प्रेम से रह सकता है। Once you live in love, you have fervent love in your own homes. That's when you will be loving towards others outside. अच्छे शब्द से बात करो। Speak good words of अगर kindness. अच्छे शब्द से घर के अंदर बात करने से में अच्छे शब्द से बाहर से बात करेंगे। Use words of kindness in your house, and that's when you use the same words outside. अगर अच्छे शब्द से आप बात घर के अंदर बात करने के समय में जो दूसरे जगहों में शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर गलत करने से गलत बात करने से शैतान आपके जीवन में कार्य See करेगा। that if you do not follow the word of God, you do not speak in love in your own homes, Satan will use you in public also. You will start speaking things which are तो unnecessary. इससे कारण जो वचन में जो लिखा है, तुम अगर कितने भी भक्त हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन सही मार्ग से, सही मन से, शुद्ध हृदय के साथ तुम दूसरे के साथ प्रेम से बात करना है। The word says that you may be very religious, but God is saying that you speak the right words, love one another fervently. वचन में वर्ष 23 में जो लिखा है, Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जो वचन में जो लिखा है, तुम पुराना चाल चलन के सब छोड़ के नया जन्म होके नया सृष्टि बन गया है। He says that you are a born again person, not of corruptible seed, not of your old life anymore, but a new life, a new being. किसके द्वारा? Through who? परमेश्वर के लहू के द्वारा, It's through the blood of the Lord परमेश्वर के Jesus. वचन के द्वारा। It's through the word of God. इसके कारण हमें स्थिर रहना है। And he says that you have to be steady, और जो वर्ष 24, because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers, and its flowers fall away. हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। एक इंसान का कुछ गारंटी नहीं है। We see that man has no guarantee for his life. जो वचन में लिखा है, जो जमीन में जो घास शुरू होता है, We see that God is comparing him, mankind, to the grass of the field. अगर धूप आने के बाद वो घास खत्म हो जाता है। We see that when there is, much sunlight, it dries up. कोई भी इंसान का कुछ गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है। We cannot guarantee mankind's life. वो जन ये सोचेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है तो वो कर सकता है। Many people, they speak boasting about I will do this, I will do that, but if you do not have the grace of God, nothing is possible. वो जन अपने आप को घमंडी समझ के, अपने आप को आई समझ के बहुत कुछ बात करता है, काम करता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है तो सब कुछ कर सकता है। Understand that there are a lot of people maybe who boast about tomorrow, speaking big things, saying that I will do this, that, but if you do not have the grace of the Lord, nothing is possible, nothing can be done. और आगे घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। आमीन। Amen. It says the word of the Lord endures forever. ये परमेश्वर का वचन जिंदा है। The word of the Lord is alive. वो जीवन है। It has life. उसमें छुटकारा है। There is deliverance in the word of God. मेरे प्रियो, जो मेरा वचन सुनने वाले, जो देखने वाले, मेरे भाई, मेरा बेटा, सब जन आप सुनियो, जो परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करो। My beloved, my brothers, my sisters, listen to the word of God. और वो परमेश्वर के वचन को सावधान ले लो। And take it cautiously. और उसको एकदम केयरफुल रहना है। Be cautious and attentive about the word of उनको God. डोंट टेक इजीली। इसको साधारण रीति से मत अगर लेना. आप इजीली ले जाओ तो परमेश्वर का वचन भी आपको इजीली काम करके देंगे। When you take the word of God very lightly, the word of God will have very less importance in your life. इसका कारण जो क्या बता रहा है नीति वचन में, Proverbs chapter 4 verse 20,
नीति वचन 4:20 My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुनो। परमेश्वर कहता है तुमको पुकारता है अपने बेटे समझ के परमेश्वर को पुकारता And here है। he is calling out to you as my son. मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। ध्यान से सुनो। Listen attentively to my word. अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। Hallelujah. जो वचन में जो बता रहा है, तुम्हारे आँख मतलब जो अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन से धारण कर। जो परमेश्वर के वचन को बारे में हमें से देखना है और वो अपने हृदय का अंदर रख के संभालना है। You should never let the word of God depart from your eyes, and you must keep them in the midst of your heart. You must save the word of God. You secure it inside of your heart. अगर परमेश्वर का वचन आपका हृदय में सही सलामत रहने के समय में जो वचन आपके जीवन में काम करेगा। When you secure the word of God inside of you, that's when that word will start working in your life. Verse 22. For they are life to those who find them, and health to all your flesh. क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आपके जीवन में बीमारी होने तो कुछ भी होने तो परमेश्वर का जो वचन कहता है, अगर तुम परमेश्वर के वचन को तुम्हारे हृदय में सही सलामत रखने से वो तुम्हारा शरीर में चंगाई होने वाला है। It says that when you have the word of God inside of you, when you diligently keep the word of God, it even gives health to your flesh. जो वचन में लिखा है वही वचन है तुम्हारे जीवन बनने वाला है। And that same word brings life to you. इसीलिए क्या करना है? Continue, verse 23. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. जो सबसे परमेश्वर अधिक कहते हैं अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल को मतलब तुम्हारा जीवन अपने हृदय के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको स्थिर रखना है। Your life totally depends on your heart, and so it says that you guard your heart, you keep your heart with all diligence. जो आपका हृदय को इधर उधर भटकना नहीं है। Do not let your heart wander away left or right. आपका हृदय को पूरा इसको उसको नहीं देना है। Do not give out your heart away to many आपका people. हृदय को सिर्फ परमेश्वर को बस दो, परमेश्वर तुमको तुम्हारा हृदय को संभालेंगे, तुमको संभालेंगे, तुम्हारे जीवन को संभालेंगे। You give your heart to the Lord, and He will safeguard it, and He will safeguard your life also. हमें क्या करना है? आगे वचन में जो लिखा है, Put away from you a deceitful mouth, and put perverse lips far from you. टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। ये जो संसार में जो गलत गलत जो बात करता है, काम करता है, वो हर चीजों को तुम्हारे हृदय से अलग बना दो। It so happens that all the deceitful thoughts and talks of this world, the perverse talks, what they do is they take you separate away from God. अभी परमेश्वर का बस इस तरफ से परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में संभाल करके वो वचन के बारे में मनन करके वो वचन के अनुसार हम चलने की कोशिश करने के समय में So you safeguard the word of God inside of you. Start walking according to the word of God. परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, He will secure you. He will safeguard you. तुम्हारे परिवार को संभालेंगे He will take care of your family. और तुम्हें परमेश्वर ने लिखा है तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हारे साथ मुलाकात हो जाएंगे। And the Lord says that He will reveal Himself to you. और वचन में जो लिखा है आइसाया चैप्टर 61 वर्स 1, आइसाया 61 और वचन 1 जो लिखा है, The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं।
ये वचन जो लिखा है ये यीशु मसीह के बारे में जो बता रहा है, And here it is the prophecy about the Lord Jesus Christ. परमेश्वर का जो आत्मा उसके अंदर है, He says that the Spirit of the Lord is upon me. ये वचन में जो लिखा है किसका हृदय टूटा हुआ है, And he says that he has come to bind or heal the brokenhearted. मतलब जो आपका हृदय मतलब टूट गया हो गया, आपका परिवार से, आपका समाज से, आपका क्षेत्र से, हर क्षेत्र से आपका हृदय टूट गया तो आप रोते होंगे। Maybe you are brokenhearted today because of the society, because of your family, but the Lord says that he will heal you. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा जो टूटा हुआ दिल को मैं चंगाई करेंगे करके। He says that I will heal the brokenhearted. और परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ है। And remember, the word of God has that particular power. परमेश्वर का वचन में तुम हृदय का देखने से तुम्हारे हृदय स्थिर हो जाएंगे। And when you keep safeguard the word of God inside of you, he will secure you. और पर अगर आप सोचेंगे मैं मेरे हृदय को परमेश्वर को देने की चाहता हूँ, लेकिन मेरे से होता नहीं है, कभी-कभी मैं गलत करता हूँ, मेरा मन बदलता है करके अगर इस तरफ आप सोचेंगे तो And if at all you're thinking, oh, I want to give my heart to the Lord, I want to surrender to him, but still I keep going astray or I falter and I fall back. परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ योजना बनाया है। The Lord has a good plan for you. अगर किस तरफ से जो अगर मन टूटा हुआ है, किस तरफ से अब सोसाइटी में हर क्षेत्र में टूटा हुआ है, तो मेरे प्रियो आज तुम्हें परमेश्वर तुम्हें नया जीवन देने वाला My परमेश्वर है। beloved, if at all you are broken, you feel broken because of your situations or the society around you, the Lord is there to give you some hope. और परमेश्वर तुम्हें नया हृदय देने वाला He will है। give you a new heart. अगर आप जो अभी सरेंडर करने से परमेश्वर से एक बार मांगो, ये मेरा परमेश्वर, मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, मेरा हृदय अशुद्ध है, मेरे हृदय में गलत विचार आ रहा है, पाप कर रहा है, गलत चीज सोच रहा है, तो मुझे क्षमा करो, मुझे आपका नया सृष्टि, नया हृदय मुझे दे करके परमेश्वर मांगने से परमेश्वर दे देंगे। Now you can ask the Lord, Lord, give me a new heart. Forgive me for whatever I have done if I've gone astray, but give me a new heart. जो वचन में जो लिखा है एसेकियल चैप्टर 18 वर्स 30, परमेश्वर जो कहता है अगर तुम मन फिराएंगे तो तुम्हारे पापों को हम क्षमा करने के लिए हम तैयार है करके जो बता रहा है। एसेकियल चैप्टर 18 वर्स 30। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। जो परमेश्वर जो कहता है तुम्हारा अपराध को छोड़ दो, He says, repent and turn away from your तुम transgressions. मन फिराओ। Turn away from your मन transgressions. फिराओ में मतलब क्या है? अगर तुम कब बताएंगे तो मैं पापी है, मैं गलत आदमी है करके तुम अपने आप को सोच के तुम कबूल करने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने की तैयार हो जाता है। When you repent and you wholeheartedly confess that yes, I am a sinner, I need to change, I need to turn, that's when you receive a true forgiveness. अगर परमेश्वर का बस यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा करने की तैयार है, Jesus is willing to forgive you. तुम्हारे हृदय को शुद्ध करने की परमेश्वर तैयार है। He's willing to give you a pure अगर तुम heart. पूरे मन को परमेश्वर के साथ तुम आने के समय में परमेश्वर तुमको नया मन देने वाला है। And when you come to the Lord with all of your heart, He will give you a new heart. Verse 31. Cast away from you all the transgressions which you have committed, and get yourself a new heart and a new spirit. For why should you die, O house of Israel? अपने सब अपराधों को जो तुमसे किए हैं दूर करो, अपने मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? तुम क्यों मरने वाला है? जो परमेश्वर जो बता रहा है तुम्हारा अधर्मों को सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ करके परमेश्वर जो पुकारता And है। here the Lord is saying, you cast away all these transgressions, all of your old life, and come to me. जो बता रहा है तुमको नया हृदय तुमको मैं देंगे, नया आत्मा को मैं देंगे। He says that I will give you a new heart and a new spirit. तो वापस परमेश्वर जो बुलाता है मन फिराओ। And He says, repent, turn.
और अगर तुम मन फिरने से परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगे। And when you turn, you repent, you will be transformed. जो तुम्हारा हृदय में कितना भी आंसू होने दो, लेकिन इसी समय में परमेश्वर को तुम स्वीकार करो। My beloved, if at all there is any impurity in your heart, anything is there, repent and call upon the हमने Lord. आपको शुरुआत में जो बताया, बहुत जिन का मन में साफ रहने के लिए मन में इच्छा है, लेकिन पापों का कारण, अधर्मों का कारण वो जो हृदय गलत विचार होता है। Many people have the desire to live a holy life, to live a life with a pure heart, but it so happens because of the sin inside of them, they are entangled. अगर वो शैतान का चाल चलन सब छोड़ के पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर का वचन को सुन के परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से परमेश्वर तुम्हें नया हृदय दे देंगे। When you hear the word of the Lord, you rid yourself of all the wickedness of this world. The Lord is willing to give you a new heart and a new life. परमेश्वर जो बता रहा है, मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। He says that I am with you. परमेश्वर कहता है, मैं मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेंगे। He says that my spirit will dwell with you. और जो परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे साथ रहने से में परमेश्वर का जो हृदय है तुम्हारे अंदर आ जाएगा। And he says when the spirit of the Lord is with you, you have a heart of Christ. परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो Believe in the Lord. और परमेश्वर के ऊपर सरेंडर कर लो Surrender your life to the और Lord. हम प्रार्थना करेंगे। Come, let's pray. ये मेरे परमेश्वर, आपने आज के दिन जो दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Father, we want to thank you for this day that you've granted to us. प्रभु आपसे सच्चाई मन से, पूरे दिल से, पूरे सामर्थ्य से आपको आराधना करने के लिए, आपको सब प्रेम करने के लिए हम सबको मदद कर लीजिए। Lord, help us to love you with all of our heart, soul, mind and strength. जो सुनने वाले, देखने वाले भाई बहन बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, I pray for everybody, the brothers, sisters and the children who are watching us. प्रभु इनके जो पुराना जो गंदे स्वभाव को निकाल दीजिए प्रभु। We pray that you'll uproot all of their old character, old इनके lifestyles. हृदय के अंदर जो गलत जो विचार है हर चीजों को निकाल दीजिए प्रभु। We pray that you will uproot every wrong thought or wrong ways of their lives. आप पवित्र परमेश्वर हैं। You are a holy God. आपको पवित्र वचन का अनुसार ये सबका जीवन में पवित्र बना लीजिए। Lord, we pray that according to your holy word, you will grant them a holy life. नया हृदय दीजिए, Give them a new heart. नया आशीषों से भर लीजिए। Lord, fill them with a new blessing. जो वचन में जो लिखा है, जो व्यक्ति संगाई होने, जो बीमारी है वो तो जो व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर जो कहता है आपको वचन में सामर्थ्य चंगाई होने के लिए। Check. We read that your word has the power of healing. आज के दिन नया चंगाई कर दीजिए। We pray that you will give them a new healing. सबके घर के अंदर शांति, समाधान और खुशियाँ दीजिए। Give peace, joy and और prosperity in कोई every भी house. चीजों में कमी कटी ना होने दो। Let them not lack anything good. कोई भी शैतान इनके जीवन में ना आने दो। We pray no evil paths will work in their lives. आने वाले दिनों में प्रभु बहुत सारा चंगाई इनके जीवन में कर We दीजिए। pray in the coming days healing will be their portion. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते In हैं। the name of Jesus we pray. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु तुम्हारे जीवन में नया हृदय तुम्हारे जीवन में तुमको दे दिया है। The Lord has granted you a new heart this day. प्रभु का वचन के विश्वास करो Believe in the word of the Lord और परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करो। and try your best to walk according to the word of और God. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आज से नया कार्य करने वाला And है। even from this day, the Lord is going to do a new work in your life. वो जिन फोन करके भी बता रहा है, परमेश्वर पिछले दिनों से बहुत आशीष किया है, चंगाई किया है, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाए करके बहुत जन गवाही किया A है। lot of people have testified, called pastor and said that how they have been blessed because of the word and the healings that they have received. ये वचन को और मनन करते रहो और प्रार्थना करते रहो, उसको पर विश्वास करो, परमेश्वर आज भी तुम्हारे जीवन में चंगाई करने वाला है। Meditate on the word that we have read today. Think about it. Even today, the Lord will do much more healing in your life. Amen. God bless you. प्रभु आप सबको आशीष करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप ये पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे जो भी अपडेट्स है मिनिस्ट्री की आप फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आज का दिन हम विश्वास करते हैं कि ये वचन आपके लिए आशीष का दिन था। हालेलुया। वी बिलीव दैट दिस वर्ड वाज अ ब्लेसिंग टू यू। इवन दिस डे बी ब्लेस्ड। आप आशीषित रहिए। आने वाले दिनों में महान कार्य गवाही हमारे बीच में आप शेयर कीजिए। हालेलुया। यू कैन मैसेज अस, यू कैन कमेंट एनी प्रेयर रिक्वेस्ट दैट यू हैव। पास्टर विल बी प्रेइंग फॉर यू। कलीसिया को भी हम आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज भी जैसे पास्टर्स एप्रिसिएशन डे है, पूरे दुनिया में बहुत सारे परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के राज्य बांधने में
लगे हैं, पूरा लाइफ सैक्रिफाइस करके। हमारे पास्टर को भी हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कलीसिया के तरफ से। वी वांट टू थैंक आवर पास्टर राज वर्गीस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड फॉर अस। एक अगुवाई बनकर, एक शेपर्ड बनकर हमें चला रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू पास्टर सो मच फॉर ऑल द डेडिकेशन एंड द लव। द हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च इज ब्लेस्ड। हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया आशीषित है। हमें परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा अगुवाई दिया है, अच्छा चरवाहा दिया है, जो परमेश्वर के वचन सत्य में हमें बांटते हैं और अच्छे परमेश्वर के मार्ग पर हमें चलाते हैं। आप सबका भी जो विशेष आए हैं इसके लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। वी लव यू, हर एक मेंबर, हर एक चर्च की कलीसिया और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबसे हम बहुत प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु आप सबको आने वाले दिनों में महान कार्य से आशीष करते रहे। हालेलुया। जैसे हमारा वचन आपके घरों में पहुंचा है, हम विश्वास करते हैं, वी एज अ चर्च बिलीव that God is going to do great things in your life and very soon you will stand and you will testify। आप खड़े होकर गवाही देंगे कि प्रभु ने बहुत सारे अच्छे कार्य आपके जीवन में किया है। Thank you so much for joining along with us। God bless you all। And we have the last prayer. You can repeat this prayer after me। तू मुझे सचमुच आशीष देता, सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। कि मैं इसे पीड़ित न रहूं। Amen। आमीन। Rise for the benediction। हमें पापों से, श्रापों से बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता और अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। Amen। आमीन। हालेलुया, Hallelujah। हालेलुया। Hallelujah। प्रभु हम सबको आशीष दे दिया है, इसलिए विश्वास के साथ ताली बजा के प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord।